श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बरन न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम धर सोई। ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई। मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुद आगे अरदास। मैं होर थाओ नाही जिस पह करो बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी नूर अरसो करसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह
ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ, ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ, ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਚੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਰਹਾਉ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਨਿਵਰੇ ਸਗਲ ਬੈਰਾਈ, ਸਦ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ। ਕਤਹਿ ਨ ਭਇਓ ਦੁਰਾਈ, ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ। ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ, ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰ। ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਓਟਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ ਠਾਕੁਰ ਕਾ। ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਓਟਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ ਠਾਕੁਰ ਕਾ। ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਲਤ ਪਲ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਇਹ ਜੀਵ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਠਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲਬਰ ਵਿਧਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂਤ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ, ਸੁਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵੋ ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ।
ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਸਮੈਲ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਡਾ ਜੂਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਭਾਂਡਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਕਰ। ਧੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਤੇਰਾ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਿਆਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਤःਕਰਨ ਮਾਂਜ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਤਹਿ ਨ ਭਿਓ ਦੁਰਾਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਕੋਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਵੀਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
क्योंकि तृष्णा की अग विच विकारां की अग दिन रात सड़दा है। ये दूसरी इच्छा जीव की। तीसरी, हर धर्म दे विच, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चन ने, जैनी है, बोधी है, कोई भी धर्म है, हर एक धर्म दे विच मनुख दे अंदर शरधा होनी जरूरी है। शरधा तो बिना बेड़ी पार नहीं लगती है, ये सच है। ते सतगुरु कहंदे हुण शरधा गुरु सर हर एक दी पूरी नहीं हुंदी है। आपां गुरु दे दर ते आउंदे हां, हर एक मनुख दी अपनी अपनी शरधा, अपनी अपनी भावना गुरु दे प्रति। ते गुप्त रूप विच सतगुर दे चरणां 'च आपां सारे अरदासां बेनतियां करदे हां कि सच्चे पातशाह किरपा करो, मैनू आह दात देना करो, मेरा कारज सफला करो, आह करना करो। तो गुरु, ये साडी गुरु दे प्रति शरधा है, भावना है कि जिस गुरु दे चरण असीं बेनती करते हैं, मेरी गुरु शरधा जरूर पूरी करेगा, जरूर पूरी करता। गुरु करता भी है। जो शरधा पूरी हो गई तो उन्होंने फिर सुख मिल गया, उहदे हिरदे नूं शांति प्रदान हो जाती है। जे आपां इतिहास की गल करिए, इतिहास में ऐसे अनेकां सिख ने, ऐसे गुरमुख प्यारे ने जिन्हां ने गुरु सवारियो गुरु साहबान की अणथक सेवा की, ते गुरु साहबान ने उन्हां ते बख्शिश की, उन्हें शरधा भावना पूरी की। गुरु कलगीधर पातशाह दे समय सिख होया भाई सैदा, दरिया दे विच किश्ती चला रहा, बड़ा अत दा गरीब है, मलाह है, कपड़े गुरु गुरु जपदा। ते एक दिन मन विच ये जग्यासा जागी कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आउण, इस बेड़ी अंदर सवार होण, ते मैं सारी नदी दे विच कलगीधर पातशाह नूं घुमाणा करा, सैर करावां। अरदास बेनती कर दित्ती, हथ जोड़े, अरदास बेनती की कि पातशाह मेरी भावना पूरी करो। फिर निता प्रति उठदा, सवेर वेले इशनान इत्यादि करदा, गुरु नूं आराधदा। फिर गुरु सर कपड़ा चुकदा, कपड़ा चुक के बेड़ी नूं साफ करन लग पैंदा। निता प्रति बार बार कपड़ा मारदा। जिहड़े नाल दे मलाह ने एक दिन उन्होंने पुछना कीता, कहण लगे भाई सैदिया की गल है, मैं असी तैनूं देखदे हां कि निता प्रति ही तू इस बेड़ी नूं वस्त्र बार बार मारदा है, कारण की है? ते भाई सैदा जी कहण लगे कि मैनू उड़ीक है गुरु दी, मेरा गुरु, मैं गुरु पातशाह दे चरनां च बेनती कीती है, ते मेरे गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस बेड़ी विच आके सवार होना है। मैं सतगुरु इस नदी दी दरिया दी सैर करवानी है। ते नाल दे मलाह हसन लग पे, कहंदे कित्थे गुरु बैठा होया, कित्थे तूं है सैदिया। पहली गल तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आउणा ही नहीं। जेकर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आ भी गए तो सतगुरु नवीआं बेड़ियां विच बैठणगे। देख मेरी बेड़ी नवीं, दूजा कहंदा मेरी बेड़ी नवीं है, तीजा कहंदा मेरी नवीं है। ऐ सैदिया तेरी बेड़ी तां टुटी हुई है, ते टुटी हुई बेड़ी दे विच गुरु कलगीधर पातशाह नहीं बैठणगे। हुण देखो, एक पासे शरधा सी, दूजे पासे अपणियां नवीआं बेड़ियां दा हंकार सी, ते भाई सैदे दे मन नूं सट लगी। फिर बेनती की कि पातशाह मैनू तेरे उत्ते शरधा है, भावना है, मैं ये सुनिया है
तू तां ਇਹ नहीं देखदा कि किसी दे टुटी हुई बेड़ी होवे, एक पासे आलीशान मकान होवे, दूजे पास टुटी हुई छपरी होवे, तू नहीं देखदा पातशाह। तू तां भावना दी जिथे भावना हुंदी है ना, चाहे वो महल माड़ियां विच बैठा होवे, चाहे टुटी हुई छपरी विच बैठा होवे, तुसीं उत्थे जाके उहनूं दर्शन दीदारे दिंदे हो। आपां गुरबाणी विच पातशाह दे बचन पढ़दे आ ना कि बसता टूटी चूं चीर सब छिन्ना, जात न पत न आदरो उद्यान परमिन्ना, मित्र न इठ तन रूपहीन किछ साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना। गुरु साहिबान जी कहते वो तो सारी सृष्टि का राजा नूं बना दिंदे ने पातशाह। भाई हेमे जैसे उत्ते बख्शिश की है। होर अनेकां ऐसे सिख ने जिन्हां ने गुरु पातशाह नूं याद किया ते गुरु साहब ने ये नहीं देखिया कि गरीब है, गरीब के घर नहीं वजाना। इतिहास पढ़ के देखो, जे सतगुरु एमनाबाद की धरती ते जांदे आ ते एक पासे मलक भागो है, दूजे पासे भाई लालो जी है। ते सतगुरु भाई मलक भागो दे घर दे विच नहीं जांदे। जिहड़ा किरती सिख सी, तरखान सी, वो भाई लालो दे गिरे विखे सतगुरु जा कोधरे का प्रशादा छकदे ने। कारण की सी कि भाई लालो का हिरदा शुद्ध सी। मलक भागो ने धर्मी लिबास पहनिया होया सी, लोकां नूं जग करके लोकां नूं साधु महात्मा नूं छकाउंदा सी, पर अंदर कपट सी, अंदर छल सी। ते गुरु नानक पातशाह कहते तेरी रोटी विच के जिहड़ा तेरा प्रशादा है, इहदे विच दसां नूहां दी किरत नहीं है, ये गरीबां दा खून है। तो उत्थे सतगुरु पहुंचे ने, भाई लालो दे गिरे प्रशादा छके, उत्थे जाके अपना टिकाणा लाना कीता, डेरा कीता है। ते भाई सैदे दे मन नूं सट लगी, ते भाई सैदा जी कहण लगे सच्चे पातशाह ये लोग मेरा मजाक उड़ाउंदे ने। पातशाह मेरी तेरे उत्ते शरधा है, भावना है, मैनू पता है कि तू गरीबां नूं निवाजण वाला है, ते पातशाह मेरी भावना पूरी करनी। अज कला वरती ये नाल दे साथी हसदे ने। कई बारी भाई सैदा जी अपनी बेड़ी विच बैठ जांदे, बेड़ी विच बैठ के मुखों वाहे गुरु बार बार आखदे, कलगीधर पातशाह नूं याद करदे, नेत्रां विचों कई बारी हंझू भी डिगण लग पैंदे ने, बराग विच आ जांदे ने। कहंदे ओ घड़ी अज आ गई। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज घोड़े उत्ते सवार अपने सूरमे सिखां दे नाल दशमेश पिता महाराज उस नदी के किनारे ते पहुँच गए। नदी के किनारे ते पहुँचे, जदों बेड़ी दे कोल पातशाह पहुँचे ना, सारे जिहड़े मलाह सी सारे अपनियां अपनियां बेड़ियां नूं साफ करन लग पे। सारे हाथ जोड़दे कि पातशाह इधर आवो, इधर आवो। ते कलगीधर पातशाह महाराज भाई सैदे दी बेड़ी बन गए ने। ते भाई सैदा जी बेड़ी विच बैठा, नेत्र बंद ने, मुखों आख रिया वाहेगुरू वाहेगुरू, ते मुखों बेनतियां कर रिया, हे कलगीधर पातशाह किरपा करो, मैनू सेवा का मौका देना करो। पातशाह आप जी मेरी बेड़ी विच आके सवार होना करो। नाले बराग विच बेनतियां करदा है। जदों गुरु कलगीधर पातशाह कोल पहुंचे ने, नेत्र बंद ने दे, ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आवाज़ दी, कहण लगे भाई सैदिया, भाई सैदे, जो सत कन्नां विच आवाज़ पई है, नेत्र खोले, नेत्र खोले, सन्मुख गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं वेखिया ते गुरु सवारिओ अस्त व्यस्त हो गया। अस्त व्यस्त तो भाव है कि बराग दे नाल गल रुक जाना, इन्नी खुशी, नेत्रां विचों हंझू डिगदे ने बराग दे, ते गल जिहड़ा बराग नाल भर जाना, कुछ बोलण दी कोशिश करनी, बोलिया नहीं जांदा, इहो जी अवस्था हो गई है। हुण बराग दे विच आके सतगुर दे चरणां च मत्था टेकिया, मानो इहो जी अवस्था बन गई कि अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम आपणे, तन मन होए निहाल
जागुर देखा सामने। सामने गुरु नूं देखिया, नदरों नदर निहाल हो गया ते सतगुर जी नूं बेड़ी विच लैके आए। टुटी हुई बेड़ी विच पातशाह बैठे ने। हुण भाई सैदा जी कहंदे बेड़ी चलाउंदे ने, नाले गुरु कलगियां वाले पातशाह वल तकदे ने, नाले मुखों गुरु गुरु जपदे ने, चप्पू मार रहे ने ते सतगुरु नूं नदी दे विच ही गुरु सोरे घुमाई जा रहे ने। कलगीधर पातशाह ने आख्या सी असीं पारले किनारे जाना है, ते भाई सैदा जी बेड़ी दे राही नदी दी सैर करवा रहे ने। कहते 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट होए, कलगीधर पातशाह ने अखीर ते आख्या, कहन लगे भाई सैदे की गल है, सानू पार नहीं तू करदा, असी पारले किनारे जाना है, सानू पारले किनारे ते पहुँचाना कर। ते भाई सैदे ने बेनती की कि पातशाह मेरे उत्ते बख्शिश करो, पहला मेरे नाल वादा करो। सतगुरु पुछदे दस भाई की मंगदा। कहन लगे पातशाह देखो तुसी भी मलाह हो तो मैं भी मलाह हाँ, तुसी संसार समुंदर तो जीवां नूं तारदे हो ते मैं मलाह हाँ, मैं इस बेड़ी दे विच सवार के नदी नूं पार कराउंदा हाँ। ते मालक जी मेरा मन करदा है कि मैं तुहाडी सैर कराई जावां। ते गुरु सवारे फिर कहंदे पारले किनारे लग गए, पारले किनारे लगे ने। हुण जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने भाई सैदे नूं कहंदे भेटा जदों मजदूरी दे रूप विच 2 मोहरां दित्तियां ने, ते भाई सैदे दा चेहरा उदास। कलगीधर पातशाह कहन लगे की गल है भाई सैदे, तैनूं खुशी नहीं होई, तैनूं मोहरां मिलियां ने पर तू तेरे चेहरे तो पता लगता है चेहरे उत्ते खुशी नहीं है, ये माया घट है, चल तैनूं होर दिंदे आ। कहंदे सतगुरु जी ने फिर 5 मोहरां भाई सैदे दे कर कमला उत्ते रख दित्तियां। ते भाई सैदा भी फिर उदास। ते सतगुरु कहन लगे भाई सैदे की गल है, कहंदे जिहड़ी मोहरां दी थैली भरी हुई सी ना वो सारी भाई सैदे दी झोली विच पा दित्ती, आ पकड़। भाई सैदा फिर उदास। ते कलगीधर पातशाह महाराज पुछदे, कहन लगे सैदे चाहीदा की है, इन्नी माया आउण दे नाल तां जीव बड़ा खुश होंदा, पर तेरे चेहरे उत्ते रौनक नहीं, खुशी नहीं है, की कारण है। ते भाई सैदा जी कहन लगे पातशाह जदों बेड़ी उत्ते आपां सवार सी ते आप जी नाल मैं एक बेनती कीती सी, ये आख्या सी कि आप तुसी भी मलाह हो ते मैं भी मलाह हाँ, तुसी भी मलाह हो ते मैं भी मलाह हाँ। मैं ये दरिया नदी नूं पार करा, तुसी संसार समुंदर तो पार कराउंदे हो। ते पातशाह मैनूं ये धन संपदा नहीं चाहिदी, मैं नहीं लैनी ये माया। जे सतगुरु मेरी सेवा ते तुठे हो, खुश होए हो, मैनूं मजदूरी देना करो। मैं वो मजदूरी मंगदा कि मैनूं मेरा इहड़ा अवारला किनारा ये संसार है, मैनूं हालत पालदे रखे कि मेरे बनना करो, मैनूं संसार समुंदर ते पातशाह मैनूं तारना करो, पार करना करो। ते कलगियां वाले पातशाह जदों ये सुनिया भाई सैदे नूं घुट के गल बकड़ी विच लै लिया, बख्शिश कर दित्ती। सो कहण दा भाव है ये है शरधा। एक पासे नवीआं बेड़ियां सन, एक पासे नवीआं बेड़ियां, एक पासे गुरु सवारिओ टुटी हुई बेड़ी सी। नवीआं बेड़ियां वाले मलाह आखदे सी कि गुरु कलगीधर पातशाह साडी बेड़ी विच आउणगे, इत्थे बैठणगे। ते भाई सैदे दी शरधा सी कि नहीं तुहानूं नहीं पता, गुरु मेरी बेड़ी विच बैठेगा। ते गुरु सवारे इस तरह फिर जिहदी अंदर शरधा भावना होवे ना, शरधा भावना दे नाल ही जिहड़े बेड़े बने लगदे ने।
सो सतगुरु बचन करते ने, कहते जेड़े भाई परमात्मा का नाम जपते ने ना, उन्होंने जीवन का सुख मिलता है। एक हुंदा सरीरक सुख, एक हुंदा मानसिक सुख। शरीर का सुख अज आप जवानी दे विच, कल नूं बुढ़ापे भी चले जावांगे, शरीर नूं कोई ना कोई रोग लग गया तो ये सुख साडा भंग हो गया, खत्म हो गया। जिहड़ा मानसिक सुख हुंदा है, शरीर दे गुरु सर टुकड़े टुकड़े हो जाण पर वो सुख कदे भंग नहीं हुंदा। उबलदे देगे विच बैठ जावे फिर भी वो सुख नूं कोई भंग नहीं कर सकता है। वो मानसिक सुख जिहड़ा गुरु सर किसी बेले नूं नसीब हुंदा है। नाम जप के बंदगी करके ये सुख जीव नूं प्राप्त हुंदा है। फिर सतगुरु कहते पहली अवस्था उन्होंने पहली दात मिलती है, वो सुखी हो जाता। दूजा है शीतल। आम तौर पर जदों गर्मियां की रुत आउंदी है, गर्मियां दे विच गुरु सवारे आपां पक्खियां दा सहारा लैंदे हैं गर्मी तो बचण दे लई, कूलरां दा सहारा लैंदे हैं, AC लाए जाते हैं घरां दे, एसियां दा सहारा लैके आपां उहदे थल्ले बैठते हैं ताकि सानू जिहड़ी गर्मी ये गर्मी नूं आपां रोक सकीए। ते गुरु सवारे पर सच जन जिन्हां दे अंदर एक तां ये सुख हो गया पक्खियां कूलरां दा एसियां दा, पर उदों तक ये सुख है जदों तक पक्खा चलदा है। लाइट चली गई, लाइट बंद हो गई, पक्खा खड़ गया, AC रुक गया, तो फिर गुरु सवारे वो जिहड़ा साडे शरीर नूं गर्मी लगन लग पवेगी। पर ये तो शरीर का सुख हो गया ना, शरीर की शांति हो गई है। शरीर ठंडा होया तो मन तो ठंडा नहीं होया, अंदर तो ठंडा नहीं होया। जिन्हां दे अंदर गुरु सवारियो परमात्मा का नाम होवे, चाहे वह तिखड़ दुपहरे सूरज की तपश थल्ले बैठे होण, वो बेशक बाहरों तपदे होण पर अंदरों ठंडे रहिंदे ने। पर जिहड़े नाम तो हीणे ने, चाहे वो कूलर थले, पखियां थले, एयर कंडीशन एसियां थले बैठे होण, ते उन्होंने गुरु सर दिन रात हर समय बाहरों बेशक ठंडे हो जाण, अंदर उन्होंने तपदे ही रहना, सड़दे ही रहना, कदे ठंडे नहीं हो सकते। पर जिहड़ा प्रभु का प्यारा है वो अंदरों भी ठंडा ते बाहरों भी ठंडा। ते सतगुरु इत्थे शीतल की गल करते हैं कि जिहड़ा नाम जपदा ना उन्होंने पर शीतलता प्राप्त हो जाती है। जिवें आप सतगुर के बचन पढ़ते ना, गुरु नानक साहब महाराज का फरमान है, फूटो आंडा भरम का मनह भया परगास। जो भरम का आंडा भन्निया कि टुट गया, फिर मन विच प्रकाश हुंदा, खेड़ा पैदा हुंदा। ते सतगुर इस शब्द च पंक्ति आउंदी है कि गुरु ने कहते नाम की दात देना कीती ते गुर तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दीओ। जो गुरु ने अपने दौरों नाम की दात देना कीती, तपदा होया कड़ाहा शांत हो गया। हुण कड़ाहा की है? साडा अंतःकरण। अंतःकरण ही दिन रात गुरु सर विषय विकारां की अग विच ये सड़ रहा, बल रहा है। तो सतगुरु कहते ये अंतःकरण रूपी कड़ाहा जिहड़ा साडा हिरदा है, जो गुरु के पासों सानू नाम की दात मिली, नाम जपिया, गुरु दसे हुए मार्ग ते चलन लग पे, कहते फिर सच जाणिओ हिरदे रूपी कड़ाहा साडा तपदा होया शांत हो गया, ठंडा हो गया। इस तरह ही जिहड़ी इत्थे शीतलता की गल पातशाह करते हैं, कहते जेकर तू अपने अंदरों विकारां की तपश, तृष्णा की तपश तू मटाना चाहुंदा है, फिर तैनूं परमात्मा के नाम का, गुरु के नाम का सहारा लेना पवेगा, तैनूं नाम जपना पवेगा।
क्योंकि नाम जप के ही साडा अंतःकरण शुद्ध होना है, ठंडा होना है। आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं, गुरु साहिबान जी सब प्रमाण करते हैं। पंजवें गुरदेव महाराज का बचन है कि चंदन चांदन सरद रुत मूल न मिटई काम, शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम। चंदन ठंडा है, सरद रुत ठंडी मनी गई है, पर कहंदे इहदे राही भाई तेरा अंतःकरण ठंडा नहीं हो सकता। चंदन की लकड़ का इस्तेमाल करे, उधर अंतःकरण ठंडा नहीं हो सकता। सरद रुत्ती दे नाल तेरा शरीर ठंडा हो सकता, पर अंदरों तो ठंडा नहीं हो सकता। जे शीतलता प्राप्त करनी है, कहंदे हरि दा नाम जप, जपंदड़ो हर नाम। हरि दा नाम जप के भाई तेनू शीतलता प्राप्त होनी है, ठंडक महसूस होनी है। इस करके दूजा बचन पातशाह ने इत्थे कीता, कहंदे उस जीव नू जीवन दे सुख मिलदे ने, उहदा अंतःकरण शीतल ठंडा हो जाता है। उस जीव दियाँ फिर सारियां शरधावां जिहड़ियां भावना ने, शरधा भावना है वो पूरी हो जाती है। कदों हुंदी है? जदों होए संत सहाय। जदों कहते संत जन रब दे प्यारे गुरमुख जन सहायक बनते ने, उदों गुरु सरे ये शरधा भावना पूरी होती है। इस करके गुरमुखां की संगत करनी अति जरूरी है। गुरमुखां की संगत विच बैठांगे सानू गुरु चेते आवेगा। जे मनमुखां की संगत विच बैठांगे गुरु सवारे सानू गुरु भुलेगा। आप जी ने एक छोटी जी गाथा साझी करते हैं। आप जी ने कई बार श्रवण की है, पर उहदा इतिहासक पक्ष वेखो। सैद खां जिहड़ा औरंगजेब बादशाह दे सैनापतियों विचों मुख सी, बड़ा बहादुर सी, जरनैल सी। औरंगजेब बादशाह की कई साल संगत की, कई साल संगत की। बड़े बड़े युद्ध औरंगजेब नूं जित के देना कीते, हर मुहिम उत्ते अगे जांदा सी। जदों हुण गुरु कलगीधर पातशाह उत्ते औरंगजेब की सभा विच बीड़ा चुक के आया कि मैं गुरु कलगीधर पातशाह नूं तुहाडे कोल पकड़ के पेश कर, जूंदा पकड़ के लैके आवांगा जां सिर वढ़ के लैके आवांगा। कहते अपनियां फौजां लैके चल पिया। रस्ते दे विच पीर बुद्धू शाह जी का टिकाणा आया। ये जिहड़ी पीर बुद्धू शाह की घर वाली सी बीबी नशीरा, वो सैद खां की भैन सी। ते मन दे विच विचार आई, चलो मना जंग युद्ध लई जा रहे हाँ, रास्ते विच अपनी संढोरे नगर मैं अपनी भैन नूं मिल चलां। हुण जदों भैन दे घर दे विच सैद खां पहुंचिया ते भैन ने बड़ा सत्कार किया। भैन नूं चाह चढ़ गया कि मेरा वीर आया है। ते भैन ने गुरु सारे लंगर पानी प्रसादा इत्यादि छकाया। फिर पूछया कि वीरे कित्थे जा रहे आ, किधरले पासे नूं जा रहे आ? कहन लग्या आनंदपुर साहिब की धरती ते जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह है उहदे नाल युद्ध करन जा रहे हाँ। गुरु गोबिंद सिंह नूं मैं जिउंदा जां खत्म करके उहदा सिर वढ़ के बादशाह औरंगजेब दे कोल पेश करना है। ते गुरु सर एक रात अपनी भैन दे घर बतीत की। भैन ने समझाया कि नहीं वीरा, वीरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बली ने, उत्थे उन्हां उत्ते कोई जित प्राप्त नहीं कर सकता। तू उस गुरु, जे तू गुरु दियां खुशियां लैणियां ना, गुरु उत्ते चढ़ाई करके नहीं जाइंदा, डंडोत बंदन करके गुरु पातशाह दे कोल जाइंदा, डंडे वत नमस्कार करी दी है। इस तरह चढ़ाई करके गुरु तो बख्शां लईदियां हन।
ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪਤ ਜਾਣੂ ਕਿ ਉਹੀ ਸੈਦ ਖਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੈਦ ਖਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਛਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਬੀਬੀ ਨਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੈਦ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਰੱਬ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਤਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰ, ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਪਾਵਨ ਪਤਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰ। ਪਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ, ਪਾਪੀ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਖ ਦੇਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ, ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨ ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵਤ ਉਦਰ ਹੈ ਸੁਣਤੇ ਉਦਰ ਹੈ, ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੈ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ,
नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे। इस तरह गुरु सवारे परमात्मा दे नाम की महिमा कथन नहीं की जा सकती। भगत कबीर साहबान जी बचन करते ने, कबीर सात समुंद है मश करो, कलम करो बनराए, वसदा कागद जो करो, हर जस लिखण ना जाए। सत्ता समुंदरां दी स्याही तैयार कर लईए, जिन्नी भी बनासपति है इहदियां कलमां घट लईए, जिन्नी भी धरती है धरती दे कागज बना लईए। कबीर साहबान जी कहंदे ने, कहंदे बार बार कहंदे इस धरती दे कागज बना के परमात्मा की सिफत लिखते जाइए, समुंदर की बनाई हुई स्याही मुक जाएगी, कलमां गुरु सर मुक जाणगियां, धरती सारी मुक जाएगी, पर परमात्मा की महिमा बड़ियाई जिहड़ी है वो मुकेगी नहीं। जिवें आपां पढ़दे हां कि धरती होर परै होर तिसते भार तलै कवण जोर, इसे तरह गुरु सवारियो परमात्मा परे तो परे है, उहदी महिमा अपरपार है, वो बयान नहीं की जा सकती है। इस करके गुरु साहबान कहते भाई उस मालक की जिहड़ी महिमा है ना, वो पापियां नूं पितर करन वाला क्षण मात्र दे विच उस मालक की महिमा कथन ना जाई, कथन नहीं की जा सकती है। निरपौ भय सगल पै खोए, गोबिंद चरण उटाई। धन गुरु अर्जन देव महाराज अखीरलियां पंक्तियां च बख्शिश करते ने, कहते जिन्हां ने गोबिंद चरण उटाई, गोबिंद परमेश्वर, चरण उटाई का अर्थ है ओट आसरा, ओट लेना कीती। जिन्हां ने परमेश्वर दे गोबिंद दे चरणों की ओट लेना कीती है ना, वो फिर जीवां की अवस्था किहो जी बन जाती है। तो सतगुरु बचन करते कहते निरभो भय सगल पै खोए, वो निरभो हो जाते हैं, उन्हां दे मन विचों सारा डर भै मुक जाता है, सारा भै गुरु सर उन्हां दे अंदर मुक जाता, तो वो निरभो दे लड़ लग के निरभो का स्वरूप ही बन जाते हैं, किसी का डर नहीं है, क्योंकि उन्हां दी अवस्था इहो जी बन जाती है। भै काहू को देत नह पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ना किसी का डर भै गुरु सर वो सहंदे ने, ना ही किसी नूं डर भै दिंदे ने, वो परमात्मा दे भै दे विच रजा दे विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करते हैं। वो कहते हैं सवान अल्लाह तेरी कुदरत, परमात्मा तेरी बनाई हुई कुदरत बड़ी सोहनी है। इस तरह परमात्मा की रजा विच भाने विच रह के वो गुरमुख जन अपने जीवन नूं बतीत करते हैं। ते सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, नानक जस गावै ठाकुर का, रैण दिनस लिब लाई। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते भाई जिस जिस मालक विच इन्नी ताकत जिहड़ा इन्ना समर्थ है, सर्व शक्तिमान है, ऐसे मालक प्रभु का नानक भी जस गाउंदा है ठाकुर का, जिहड़ा तिन्नां लोकां दा मालक है। कहते कदों गांदा है, कहते रैण दिन से लिब लाई, रैण दिने भी रात भी हर समय कहते लिब ला के नानक उस मालक की सिफत कर रहा है, उस प्रभु की वडियाई कर रहा है। तो गुरु सवारियो कहण दा भाव है कि गुरु नानक साहब महाराज का कि सुबह तो शाम जीव तू परमात्मा का नाम जप, दिन वेले तू अपना आहार कर, काम धंधा कर, तो काम धंधा करदियां होइयां भी बस मालक की याद अपने मन विच बसा के रख। जो आप मालक नूं गुरु साहिबां नूं हर समय हाज़र नाज़र जाणांगे, फिर मानो एक तरह गुरु सरे आप दिन रात परमात्मा के गुण गा रहे हैं। तो बहुत तादाद दे विच
साडी हालत ऐसी है कि आपां सुबह ते शाम गुरु साहिबां नूं याद करते हैं। जो दिन वेले अपना काम धंधा करते हैं, किसी प्रकार की खेती करता है, कोई अपनी फैक्ट्री चलाता, कोई दुकानदार दुकान उत्ते बैठता है, तो उदों फिर अपनी किरत में लग जाते हैं। दसां नूहां की किरत करनी गुरसिख लई अति जरूरी है। सारे करते हैं पेट की पूर्ति लई, पर जदों उस दुकान उत्ते गुरु साहब बहिंदे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उदों असीं बैठे हुए अपने गुरु के उपदेश नूं भुल जाते हैं। ते गुरु के दर ते जाके आसा दी वार श्रवण कीती सी अमृत वेले, ते मेरे गुरु ने आख्या सी, हक पर आया नानका उस सूर उस गाए, गुरपीर हामा तां भरे, जा मुरदार ना खाए। आसा दी वार श्रवण कीती अमृत वेले। आसा दी वार विच गुरु साहिबां ने बचन कीते ने कि हुण अपने काम धंधे विच बैठ के जे तां तू पराए नूं सामने कोई गाहक आ गया, उन लुट रहा है, तो पराए का हक मार के आप खा रहा है, तो मानो फिर तेन गुरु चेते नहीं है, तेन रब चेते नहीं है, तेन गुरु का उपदेश चेते नहीं है। पर जदों तेन ये गुरु दीयां पंक्तियां तेरे सन्मुख आ गई कि मेरा गुरु ये कह रहा है, नहीं भाई मैं ये काम नहीं करना, तो उदों समझ लेना कि गुरु चेते है। गुरु दसा, गुरु का उपदेश मैनू चेते है, मन गुरु चेते है। या मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु आप आखी जाइए, राम राम अल्लाह अल्लाह आखी जाइए, तो गुरु सवारे पर आपां कोई लोक भलाई का काम नहीं करिए, किसी लोड़वंद की सहायता ना करिए, पराए नूं दुख देना करिए, फिर गुरु सवारे वो वाहेगुरु वाहेगुरु कहण दा की फायदा जो सापा अपनी इंसानियत भुल गए। सो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज का जीवन इहो जिहा सी, क्योंकि गुरु नानक पातशाह अमृत वेले आप जागते सन। उठ के सतगुरु इशनान करना, चौंकड़ा मार के बैठ जाना, फिर सतगुरु उदासी के रूप में गुरु सवारिओ यात्रावां करते हैं, लोगों को उपदेश देंदे सी। फिर संध्या वेले जिथे रात पै उत्थे जाके डेरा लाना, उत्थे पातशाह ने फिर मालक की सिफत सलाह कर देनी। आश्चर्य नज़ारा पातशाह इस तरह वेखदे सी। अखीर ते पातशाह ने करतारपुर साहिब की धरती ते अपना डेरा ला लिया, किरत करन लग के दसिया दुनिया के लोगों को कि भाई असली जिंदगी यही है, दसां नूहां दी किरत करके ते परमात्मा नूं चेते करना, वाहिगुरू की सिफत सलाह करनी। इस तरह नानक दिन रात कहते भाई लिभ ला के परमात्मा वाहिगुरू का जस करता है, उस मालक का जस करता है। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साढ़े उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गई होणगीਆਂ, संगत अते सतगुरु बख्शण योग ਹਨ। भुल चुक दी खिमा करनी जी। आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। निरभौ भय सगल भै खोए, गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावै ठाकुर का, रैण दिनस लिव लाई।